السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی توثیق کے حوالہ سے ہم مختلف محدثین، علماء، شیوخ کا نظریہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے ہمیں راجح مرجوح معلوم کرنے میں بڑی آسانی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا تیسرا درس ہے شیخ محمد بن عمر بازمول حافظہ اللہ کی رائے کے متعلق۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی الاضافہ۔ اپنی کتاب الاضافہ میں ایک مستقل مقالہ انہوں نے امام ابن حبان رحمہ اللہ کے توثیق کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ اس پر ہمارے مختصر 2 لیکچر ہو چکے ہیں، یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ شیخ بازمول حافظہ اللہ نے اپنی کتاب الاضافہ کے صفحہ نمبر 190 پر مولوی یمانی رحمہ اللہ کی توثیق نے جو ابن حبان کی توثیق کے 5 درجے بیان کیے ہیں وہ نقل کیے ہیں، اور اس کے بعد فائدہ نمبر 26 میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 191 ہے کہ مولوی یمانی رحمہ اللہ نے بڑے عمدہ یہ تقسیم کی ہے، بہت ہی عمدہ ہے۔ میں کچھ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام ابن حبان جب کسی راوی کو ثقہ قرار دیں اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ ابن حبان اس کو ثقہ قرار دے رہے ہیں، دوسرے محدثین کا اس پر کلام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ابن حبان اس کو ثقہ قرار دینے میں منفرد ہیں، کسی کا کلام نہیں ہے۔ اگر ابن حبان کے علاوہ کوئی محدث اس راوی پر جرح کر رہا ہو یا کلام کر رہا ہو، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا وہ ابن حبان کے کلام کے موافق ہوگی یا مخالف ہوگی۔ اگر دوسرے محدث کی بات ابن حبان کے مخالف ہے تو اس موقع پہ ہم وہی معاملہ کریں گے جو مصطلح اور جرح و تعدیل میں مقرر قواعد ہیں کہ جب ایک راوی کی تحقیق میں 2 محدثین کی آراء مختلف ہوں تو جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے۔ مثلا جرح مفسر کو تعدیل پر مقدم کیا جائے گا، اور مجمل جرح پر اعتماد نہیں کریں گے اس راوی کے حق میں جس کی توثیق اور عدالت ثابت ہو، یا معدل جرح کا سبب ذکر کرے اور اس جرح کو کسی دلیل کے ساتھ رد کرے، یا وہ ایسا وہ جرح کا حکم لگاتا ہے اس کی ایک حالت پر اور اس کی عدالت، اس کا عادل ہونا ایک دوسری حالت میں ہے۔ یعنی یہ جو مشہور قواعد ہیں جرح و تعدیل اور اصول حدیث کی کتابوں میں کہ جب ایک ہی راوی کے حوالہ سے 2 محدثین کی آراء مختلف ہو تو کیا کیا جائے گا، تو ابن حبان سے جب کوئی مختلف ہے یہاں بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو عام محدثین کے ہاں کیا جاتا ہے، یہ کوئی الگ اصول نہیں بنایا جائے گا۔ اسی طرح صفحہ نمبر 192 میں شیخ بازمول حافظ اللہ لکھتے ہیں 27 نمبر فائدہ کے تحت، جب ابن حبان کسی راوی کی توثیق میں منفرد ہوں تو اس کی کچھ حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کہ وہ راوی امام ابن حبان کے شیوخ میں سے ہے یا وہ امام ابن حبان کے معاصرین میں سے ہے۔ دوسری صورت کہ وہ راوی ابن حبان کا معاصر نہیں ہے، ہم زمانہ نہیں ہے۔ پہلی حالت میں امام ابن حبان کی توثیق کو شمار کیا جائے گا، خاص طور پہ جب اس راوی کی حدیثیں زیادہ ہوں اور ابن حبان کی کلام اس راوی پر اور اس کی مرویات پر معرفت ہو، اس پر بھی ہمیں کوئی دلیل مل جائے۔ فائدہ نمبر 28 میں لکھتے ہیں
दूसरी हालत में जब रावी इब्न हिब्बान का मुअस्सिर नहीं है तो उसकी कुछ हालतें हैं। पहली हालत ये है कि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह उसको अस्सिकात में नकल करते हैं और साथ उस रावी की आदिल और तौसीक पर नस भी बयान करते हैं। दूसरी सूरत कि उसको जिक्र करते हैं ऐसी नस के साथ कि उस रावी की रिवायत कबूल नहीं की जाएगी मगर जब उसकी मुवाफिक सिकात रावी भी हों। तीसरी सूरत उसको जिक्र करें, जरा भी जिक्र कर दें, उसको जिक्र करें लेकिन उसकी हालत पर नस नहीं बयान कर रहे। पांचवी सूरत यह है कि किसी रावी को अस्सिकात में जिक्र भी कर रहे हैं और उसकी जरा भी नकल कर रहे हैं सिकात के अंदर, और साथ उसको अपनी किताब अल मजरूहीन में भी उसको दोहराते हैं, वहाँ भी जिक्र है, सिकात में भी मजरूहीन में भी। छठी सूरत ये है कि वो उसको सिकात में जिक्र करते हैं इस सराहत के साथ कि उन्होंने इस रावी को इस्तिखारा के बाद सिकात में जिक्र किया है। अल्लाह अकबर। सातवीं सूरत ये है कि ऐसा रावी जिसको सिकात में जिक्र करें साथ सराहत करें कि वो इस रावी को नहीं पहचानते ना इसके बाप को पहचानते हैं। यानी ये 7 सूरतें दूसरी हालत की हैं जब रावी मुअस्सिर नहीं है। अगर रावी मुअस्सिर है तो उसकी 2 हालतें हैं, वो पीछे हमने बयान कर दी हैं। अगर गैर मुअस्सिर रावी है तो उसकी 7 हालतें शेख बाज़मूल हाफिज़ुल्लाह ने बयान की हैं। इसी तरह 29 नंबर फ़ायदा, पहली हालत में इब्न हिब्बान की तौसीक तीसरे दर्जा से कम नहीं होगी तादील के मरातब में से। यानी जो मुहद्दिसीन ने तादील के तौसीक के मरातब मुकर्रर किए हैं, तो अगर रावी पहली हालत में है तो इब्न हिब्बान की तौसीक तीसरे दर्जा से नहीं उतरेगी, और दूसरी और तीसरी और 5वीं हालत में अगर रावी है तो वो उस रावी की रिवायत चौथे दर्जा से कम नहीं होगी। अगर जहाँ कोई जरा की वजाहत नहीं है तो उसकी रिवायत हसन ज़ाती के मर्तबा की होगी, और अगर कोई रावी जरा के जगह में है, जरा मज़कूर है, तो उसकी रिवायत कबूल नहीं करेंगे जब वह मुनफरिद होगा, यहाँ तक कि जरा का सबब ज़ायल हो जाए, और ये 5वें मर्तबे का रावी होगा। चौथे, छठे और सातवें हालत में उसकी रिवायत एतबार के मर्तबा से नीचे नहीं आएगी, और 5वें और छठे हालत में वो 5वें और छठे तादील के मर्तबे पर होगा, या पहले और दूसरे जरा के मर्तबा पर होगा। तादील के मरातिब हैं, जरा के भी मरातिब हैं। शेख बाज़मूल हाफिज़ुल्लाह ने ये सारी तफसील इख्तिसार के साथ बयान कर दी है। सफ़ा नंबर 193 अल इज़ाफ़ा किताब का, इसमें खुलासा पेश करते हैं जो उन्होंने पीछे बहसें की हैं। खुलासा कलाम ये है, 1 नंबर कि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह रावी को कबूल करने में शर्त लगाते हैं कि दीनी अदालत पाई जाए उसके ज़बत के साथ। रावी ज़ाबित भी है और वो रावी आदिल भी है, दीनी लिहाज से मजबूत है, दीन पर पाबंद है, उसका ज़बत भी है। नंबर 2, इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने दीनी अदालत में वुसअत को अपनाया है और ज़ाहरी अदालत पर ही इक्तिफा करते हैं बातिन के अलावा। नंबर 3, इब्न हिब्बान के नज़दीक आदिल वो रावी है जिस पर जरा ना मालूम हो, जब उससे सिका बयान कर रहा हो तो उसको अपनी किताब अस्सिकात में बयान करते हैं। ये हमने पहले भी एक लेक्चर में वाज़े किया था। शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी हाफिज़ुल्लाह की राय,
उन्होंने भी ये कहा है कि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह हर रावी को सिकात में जिक्र नहीं करते। जो उनके बारे में मशहूर बातें हैं, कई बातें गलत हैं, दुरुस्त नहीं हैं। उन्हीं बातों में से कि ये भी बात है कि जब सिका रावी किसी मजहूल से बयान करने वाला हो तो उसको सिकात में जिक्र करते हैं। और इसकी वजाहत इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने मजरूहीन में खुद भी की है, वो पीछे हम बयान कर चुके हैं शेख अल-हुवैनी हाफिज़हुल्लाह की राय के मजमून में। 4 नंबर, इब्न हिब्बान की किताब अस-सिकात मुश्तमिल है ऐसे रावियों पर जो बजाते खुद सिका हैं या जो गैर की वजह से सिका हैं, और सिका से मुराद मकबूल रावी है। नंबर 5, इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह हसन को सही से अलग नहीं करते, बल्कि हर हदीस जो उनके यहाँ मकबूल है उसका नाम वो सही रखते हैं। नंबर 6, किसी रावी का सिकात में पाया जाना, इससे इमाम इब्न हिब्बान मुतलकन उसका हुज्जत होना मुराद नहीं लेते, बल्कि उसका माना है कि जायज़ है हुज्जत पकड़ना उसकी खबर के साथ, कब, जब उसके अंदर दीगर शुरूत पाई जाएं जो रावी और मरवी में हों, जो रावी और मरवी में हैं, मुकर्रर की गई है वो शर्तें पाई जाएं तो उसकी रिवायत ली जाएगी। नंबर 7, जिसकी तरफ इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह गए हैं, जिस सिमत की तरफ, जिस मौक़िफ़ की तरफ उसकी भी वजह है और उसके दलाइल इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने नकल किए हैं। इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह सही हदीस में शर्त लगाते हैं कि वो शाज़ ना हो, इल्लत उसमें ना हो, जिस तरह रावी का के ज़ब्त की शर्त लगाते हैं, सनद का मुत्सिल होना शर्त लगाते हैं। इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह सिर्फ दीनी अदालत में ज़ाहिरी अदालत पर इक्तिफा करते हैं, बाकी शरायत इब्न हिब्बान की वही हैं जो आम मुहद्दिसीन की हैं। इब्न हिब्बान की तरफ मुतलक तौर पर तसाहुल की निस्बत दुरुस्त नहीं है, जब तक, हालांकि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने अपना कायदा वाज़े कर दिया है, इस्तिलाहात वाज़े कर दी हैं, और इस्तिलाहात में कोई वला मशाहत फिल इस्तिलाह, हर मुहद्दिस की अपनी इस्तिलाह होती है, तो बाहिस और मुहक्किक पर लाजिम है कि वो इब्न हिब्बान के इन कवायद और उसूल का लिहाज रखे। इब्न हिब्बान की तौसीक के मरातिब हैं और उस कौल को नहीं लिया जाएगा कि इब्न हिब्बान की तौसीक की परवाह नहीं की जाएगी, ये बात गलत है। इसी तरह इब्न हिब्बान के तौसीक को अदना दर्जा दिया जाएगा, ये भी बात दुरुस्त नहीं है, इनको कबूल नहीं किया जाएगा, जो आम मशहूर बातें हैं। बेशक सही बात यह है, इब्न हिब्बान का किसी आदमी की, किसी रावी की तौसीक करना सिर्फ उस रावी का किताब में जिक्र करने के साथ ये अदना दर्जे की तौसीक है, यानी ऐसा रावी जिसको महज जिक्र कर दिया है अपनी किताब में, जिक्र करना ये अदना दर्जे की तौसीक है। ये असारिमुल मुनकी का हवाला दिया गया है सफ़ा नंबर 139 पर। इसी के साथ शेख बाज़मूल हाफिज़हुल्लाह का मकाला जो इमाम इब्न हिब्बान पर उन्होंने लिखा अपनी किताब अल-इज़ाफ़ा में, इसी के साथ मुकम्मल हुआ। वल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका। तो तहकीक का दरवाज़ा वसी है, इज्तिहाद का दरवाज़ा वसी है। इमाम इब्न हिब्बान के हवाला से हम कई एक लेक्चर देना चाहते हैं हदीस के तलबा और तालिबात जो हमसे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं उनके लिए, ताकि इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह के हवाला से जो बातें मशहूर हैं उनकी हकीकत वाज़े की जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा दिनों में अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे, सेहत दे, हमारे वक़्त में बरकत फरमाए
اور ہمیں سچ اور حق کی تلاش میں مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے کافی زیادہ چیزیں جمع کر رکھی ہیں امام ابن حبان کے حوالہ سے، وہ ہم بعد میں کتابی شکل میں بھی اس کو شائع کریں گے انشاءاللہ العزیز اردو زبان میں، اور فی الحال ہم یہ دروس و لیکچروں کی صورت میں ہم اپنے طلبہ و طالبات کی رہنمائی کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیخ بازمول حافظہ اللہ امام ابن حبان کی مجہول کی توثیق کے حوالہ سے جو مشہور بات ہے اس کی قائل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کا زبردست قسم کا رد کیا ہے۔ شیخ مولوی یمانی رحمہ اللہ بھی اسی مسئلہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ ابن حبان کے توثیق کے درجات ہیں۔ مطلق طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ مجہول کو ثقہ قرار دینے میں یہ متساہل ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ مولوی یمانی صاحب کا بھی یہی موقف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا حوالوں کے ساتھ، اور ابو اسحاق الحویانی صاحب کا بھی یہی موقف ہے، اس پر ہم نے مفصل لیکچر دیا۔ اسی طرح شیخ بازمول حافظ اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔